আমরা সবাই জানি শ্রাবণ মাস হচ্ছে বাবা শিবের মাস, তাই পরম দয়ালু বাবা শিবের কাছে দলে দলে ভক্তরা ছুটে যান বাবার কৃপা লাভের জন্য। সারা বছর ধরে বাবার দরবারে ভক্তদের ভিড়ের কমতি না থাকলেও এই শ্রাবণ মাসে শ্রাবণের ধারার মতো বাবার কাছে যাওয়ার জন্য ভক্তদের প্লাবনে ভেসে যায় বাবার দরবার। বিশেষত বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢেলে আপন মনোবাঞ্ছা নিবেদন করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন বাবার পরম ভক্তরা। তাই গঙ্গা থেকে বাঁকে করে গঙ্গা জল নিয়ে তারকেশ্বরের পথে পাড়ি দেন হাজার হাজার লাখো লাখো ভক্ত। হাওড়া সাউ সমাজের তরফ থেকে এই তীর্থযাত্রীদের পথের ক্লান্তি লাঘব ও তাদের সাহায্য করার জন্য প্রতিবারের মতোই এবারও বাসুদেবপুর কোল্ড স্টোরেজের সামনে তারকেশ্বর কাবাডিয়া সেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে তীর্থযাত্রী ভক্তদের জন্য বিনামূল্যে চা, শিকাঞ্জি, আহার, প্রাথমিক চিকিৎসা, বিশ্রামের ব্যবস্থা, পথ নির্দেশিকা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাও রাখা হয়। এদিন আয়োজিত হয়ে গেল এই ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউ সমাজের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রূপচাঁদ প্রসাদ। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভগবান দাসারিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউ সমাজের সেক্রেটারি ML সাউ, জনবাজার সাহু সমাজ ট্রাস্টের সচিব রাজেন্দ্র প্রসাদ, অ্যাডভোকেট মিছরিলাল সাউ, পিভি তৈলিক সাহু সভার প্রাক্তন সচিব রাম আক্তার প্রসাদ, অল ইন্ডিয়া তৈলিক সাহু মহাসভার উপদেষ্টা রবীন্দ্রনাথ গড়াই, অল ইন্ডিয়া তৈলিক মহাসভার সহসভাপতি তীর্থঙ্কর প্রসাদ, সিভিল কোর্টের চিফ জাস্টিস উত্তম সাউ, রুজি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সেক্রেটারি রাজেশ্বর সাউ, সমাজসেবী বাবুলাল সাউ, পণ্ডিত তৈলিক সাহু সভার যুগ্ম সম্পাদক সন্ধু সাউ, বিজয় কুমার সাউ, কনকদুর্গা এবং কলকাতা সাহু সমাজের সভাপতি অশোক কুমার সাউ, দক্ষিণ জেলা সাহু সমাজের সেক্রেটারি ধনঞ্জয় গুপ্তা, কলকাতা সাহু সমাজের সেক্রেটারি অনিল গুপ্তা, হাওড়া ভারতীয় সাহু সমাজের সভাপতি রামেশ্বর সাউ, যুবরত্ন সূর্যপ্রসাদ সাউ, মনোজ সাউ, টলিগঞ্জ কল্যাণ সেবা সমিতির সম্পাদক নকুল সাউ, পণ্ডিত তৈলিক সাহু সভার ইউথ সেলের সভাপতি রাজকুমার সাউ, সেক্রেটারি উমাশঙ্কর সাউ, কোষাধ্যক্ষ সন্তোষ কুমার গুপ্তা, সুধীর কুমার গুপ্তা, বিশেষ সহকারী ভাবিচন্দ্র জৈন, উদয় সাউ, বাঁকড়া সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট সুখদেব সাউ, বাবা নাইকন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রামলাখন গুপ্তা, বাংলা সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট সুরেশ কুমার সাউ, জগদীশ প্রসাদ সাউ, তটলেট সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট গণেশ সাউ, ভবানীপুর সাহু সমাজের সভাপতি শঙ্কর গুপ্তা, সেক্রেটারি দেবনাথ সাউ, নারকেলডাঙ্গা রাজাবাজার সাহু সমাজের সভাপতি দীপেন্দ্র গুপ্তা, তপসিয়া তিরজলা সাহু সমাজের সভাপতি দয়াচাঁদ গুপ্তা, বেলঘরিয়া কামারহাটি সাহু সমাজের সভাপতি রাধেলাল সাউ, সেন্ট্রাল কলকাতা সাহু সমাজের সভাপতি গোবর্ধন গুপ্তা, সেন্ট্রাল কলকাতা সাহু সমাজের সেক্রেটারি মহেন্দ্র গুপ্তা, শহরবাজার সাহু সমাজের সেক্রেটারি সুজিত সাউ, কলকাতা সাহু বিকাশ ট্রাস্টের সভাপতি প্রদীপ সাউ, কলকাতা সাহু ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের সচিব রাকেশ কুমার সাউ, শহরবাজার সাহু সমাজের প্রেসিডেন্ট বিশ্বনাথ সাউ, কপিল সাউ, ঢাকা সাহু সমাজের সভাপতি সুরেশ সাউ, সুনিতা গুপ্তা, সভাপতি মহিলা সেল পশ্চিমবঙ্গের কাঞ্চন গুপ্তা, মহিলা সংগঠন চন্দ্রা সাউ, বিন্দু সাউ, রানী সাউ, সুষমা সাউ, তারা গুপ্তা, বিনা সাউ। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সাহু সমাজের চেয়ারম্যান কালীচরণ সাউ, বিনোদ সাউ, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিজয় কুমার গুপ্তা, সম্পাদক অশোক সাউ, কৃষ্ণপ্রসাদ গুপ্তা, কোষাধ্যক্ষ সুদীপ সাউ, উপকোষাধ্যক্ষ পাপু সাউ, পৃষ্ঠপোষক দশরথ প্রসাদ গুপ্তা, ভাইস প্রেসিডেন্ট তুলসী সাউ, বিজয় প্রসাদ শাহ, ওম প্রকাশ শাহ, জয়েন্ট চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র প্রসাদ শাহ, রঞ্জিত কুমার শাহ, অ্যাকাউন্ট অডিটর উমাশঙ্কর শাহ, অনিল শাহ, সন্তোষ শাহ, প্রধান উপদেষ্টা দশরথ শাহ, বজরঙ্গী শাহ, সত্য সংগঠন মন্ত্রী রামজি শাহ, मनोज शाह, मिठू शाह, ओम प्रकाश शाह, नारायण शाह, मुकुट शाह, सुशील शाह, शुभम शाह, संजीव शाह, ऋतु शाह, रंजीत शाह, ओम प्रकाश कुमार, अनूप कुमार शाह, सूरज शाह, सुधीर शाह, नंदकिशोर प्रसाद सह अन्यान्य विशिष्ट व्यक्तिगण। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा
हावड़ा साहू समाज में भी जब जर्जर अवस्था में जैसा बता रहे थे, जिस अवस्था में था उस अवस्था में भी मैं वहां का भ्रमण किया था और उस समय समाज के काफी लोग सहयोग दिए थे। उसमें शायद मेरा भी कुछ सहयोग रहा होगा, ऐसा मेरे को लगता है कि उस समय हमने भी कुछ सहयोग दिया था। और ये धीरे धीरे संस्था आज जाकर के जिस मुकाम पर पहुंची है, यहाँ बड़ा साहू समाज के लिए नहीं, हमारे पश्चिम बंगाल साहू समाज के लिए भी गर्व की बात है कि एक हमारी संस्था इस ऊंचाई पर पहुंची हुई है। आज उस संस्था का मैंने इतना ऊंचाई पर पहुंचा हुआ कि उसका बढ़िया ढंग से आज के युग के हिसाब से रिनोवेशन का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि हमारे यहाँ अशोक जी आए थे और उनके समाज से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आए थे, जैसा हमको बताया गया। मैं चाहता हूँ हमारी जितनी भी संस्थाएं पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, ये सब इसी तरह से सामाजिक कार्य में आगे बढ़े और कुछ न कुछ अपना बेस बनाए। देखिए, हर संस्था का बेस होना जरूरी है। जब तक आपका बेस नहीं रहेगा, कोई चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, जो भी कुछ नहीं रहेगा, तब तक आप जो है कोई भी सेवा मूलक काम कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। करते रहेंगे, ये उनको विश्वास है। और हावड़ा साहू समाज के ये प्रोग्राम में आकर प्रत्येक बार ही आते हैं, मन गदगद होता है, इसलिए कि यहाँ पर महिलाओं का संख्या देखकर काफी खुशी होती है कि जहाँ पर महिलाओं का आगमन होता है वहाँ का संस्था ऑटोमेटिक आस्ते आस्ते बढ़ने का शुरुआत करता है। कि जैसे कि कालीचरण बाबू कहें कि उन्होंने, आप लोगों को पता है कि उन्होंने अपना दुकान से ही साहू समाज के बारे में चिंता भावना की कि एक समिति हो। उन्होंने पुराना मकान खरीदे, पूरा मकान खरीद कर आज देखिए क्या सुंदर ढंग से अपना भवन बनाया है, देखने लायक है। अभी 2 साल से हम लोग का निमंत्रण नहीं मिल रहा है क्योंकि भवन बनाने में उन लोग व्यस्त बन रहा है। फिर हम लोग का अगला साल से निमंत्रण मिले। निमंत्रण इस बारे में कि वहाँ पर 12 मास से 13 प्रावण इस तरह का वहाँ पर कर्मकांड करते हैं हावड़ा साहू समाज। चश्मा वितरण, बच्चों लोग का किताब का वितरण, ठंडा में कंबल वितरण, लार्ज स्केल में बहुत परिमाण में इस तरह का उन लोग का सेवा करते रहते हैं। तो कालीचरण बाबू फाउंडर है, वन मैन आर्मी है। जिस रूप से हम लोग ने अपना पश्चिम बंगाल तेलिक साहू सभा से सम्मानित किया हमारे राम लखन बाबू को, वो भी वन मैन आर्मी है। हमारे गंजोबाड़ी में जाकर, गंजोबाड़ी में कुल देवता बहुत दिन से है, पर उनके जाने पर एक नया रूप आ गया है। व्यायाम हम लोग सभी करते थे, योग व्यायाम हम लोग सभी जानते हैं, बचपन में हम लोग स्कूल में सिखाया है कि रामदेव बाबा आने के बाद में इसे आलादा महत्व मिला है, जो कि इंटरनेशनल योगा दिवस भी किया जाता है। उसी तरह से राम लखन बाबू जिस तरह से गंजोबाड़ी में हमारे साहू कुल देवता का जो हम लोग देवता है वहाँ पर जिस तरह से भवन बनाए हैं, उनका क्रियाकलाप देखकर हम लोग भी गदगद हुए हैं। जिसमें कि हम लोग को ऑफर दिए कि आप लोग वहाँ सम्मेलन कीजिए। उनके ये ऑफर को हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय रूपचंद प्रसाद जी ने एक्सेप्ट किए हैं। बोले कि हाँ, हम लोग हावड़ा, हम लोग पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड तीनों राज्य मिलाकर हम लोग वहाँ पर सम्मेलन करेंगे, जिसमें कि एक तीनों राज्य में जितने हमारे एमएलए एमपी हैं साथ में हो सके तो हम लोग अखिल भारतीय से भी 2-4 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे। और मैं आप सबों से आग्रह भी करूंगा कि कम से कम आधा मिनट के लिए आप लोग खड़ा होकर के उनकी हौसला को अफजाई करें कि जिस तरह से आपने 25 साल किया है, आप लोग 50 नहीं 100 साल करें। उनके जज्बा को सलाम करते हुए आप लोग कम से कम आधी घंटा 30 सेकेंड तक आप लोग तालियों के गड़गड़ाहट से उन लोगों को हौसला का अफजाई करें। धन्यवाद सर। आज हम लोग इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस पावन जगह में आकर के कि हमें ये मौका आप लोगों के द्वारा मिला है। आप लोग ने एक चेतना जगाई है समाज को कि हम तेली बंधु, तेली परिवार, समाज के किसी भी क्षेत्र में सेवा का भाव लेकर के जो हम लोग ठान लेते हैं उसको संपूर्ण करते हैं। ये चेतना
जगाने के लिए हम सब साथ परिवार आपका और आपके समाज का हमेशा आभारी बना रहूंगा। जहाँ कहीं भी आपका जरूरत होता है आप चले आते हैं। हावड़ा साहू समाज हमारा मन का, हमारे शरीर का एक अंग है। हावड़ा साहू समाज के उत्पन्न भी हम ही किए हैं, इसलिए हमारा उसका प्रेम है। आज जो कुछ भी हो रहा है बहुत खुश हैं। और हावड़ा साहू समाज के लोग जो है तो बड़ा उद्यमी है, बहुत उद्यमी है। वो लोग जो है ये कार्यक्रम जो है तो करीब 30 साल से चल रहा है और हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक साल आके इन लोगों का हौसला बढ़ाएं। हम उनका हौसला बढ़ाते भी हैं, इस कार्यक्रम पे हमारा हौसला बढ़ता भी है। हावड़ा साहू समाज द्वारा जो है आज का तारकेश्वर कंवरिया सेवा शिविर का जो उद्घाटन हुआ, इसके साथ इन लोगों का इस सेवा कार्य करते हुए तारकेश्वर कंवरिया सेवा शिविर का 25 साल हो गया। इस 25 साल के उपलक्ष्य में जो है हम पश्चिम बंगाल साहू समाज के तरफ से हावड़ा साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इस तरह से जो 25 साल इन्होंने सेवामूलक कार्य किया, इसी तरह से निरंतर जो है जब तक इनका समाज रहे चलाते रहे, ये हमारे पश्चिम बंगाल साहू समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं यहाँ पर उपस्थित जो भी हमारे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, सभी संस्था के लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, हमारा युवा वर्ग आया हुआ है। मैं पश्चिम बंगाल से सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सब मीडिया कर्मी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने भी आज के इस प्रोग्राम को सफल करने में आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। और मैं और एक बार जो भी कंवरिया इधर से गुजरेंगे, हमारा हावड़ा साहू समाज उनके सेवा के लिए तत्पर रहेगा। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था है, सभी तरह की व्यवस्था यहाँ हावड़ा साहू समाज द्वारा किया गया है। और अंत में मैं ज़्यादा नहीं कुछ करके जय साहू समाज, धन्यवाद। गंजोबाड़ी के लिए हम लोगों का भी डिसीजन हुआ है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार लेकर के एक बहुत बड़ा हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये दिसंबर में हम लोग करेंगे। अभी तक इसका हम लोग डेट डिसाइड नहीं किए हुए हैं, लेकिन आशा है कि हम लोग बहुत जल्दी इसके लिए कोई डेट हम लोग निश्चित कर लेंगे। और ये सम्मेलन बृहद रूप में होगा और हो सकता है कि हम लोग पूरे ऑल इंडिया से भी लोगों को भी निमंत्रित करें और बाकी हम लोग चर्चा करके इसको देंगे। और दूसरा चीज़, आज ये मीटिंग में ये भी हम लोग आज के इस सेवा शिविर में ये भी एक हम लोग निर्णय किए हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल महिला शक्ति द्वारा जो है एक राम कथा का प्रोग्राम करने लोग जा रही है। वो राम कथा जो है ये हावड़ा में होगा, ये भी दिसंबर महीना में होने जा रहा है। इसकी भी हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है और समाज के लोग उस राम कथा के सेवा में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और ये भी सफल प्रयोग होगा, जिससे हम लोगों का महिलाओं का उत्साह बढ़ेगा और सामाजिक एकता बरकरार रहेगी। और धूप हो आप पहुंच जाते हैं जहाँ का भी सेवा काम होता है, इसका राज क्या है? नहीं, राज तो कुछ नहीं है। राज तो हम लोगों का देखिए आज से नहीं, बहुत दिन से हम पश्चिम बंगाल साहू समाज से जुड़े हुए हैं। हमारे दुर्गा बाबू हैं, हम लोग तो है ना आज से नहीं बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और हम लोग का आना ड्यूटी बनता है। हम लोग आएंगे ही आएंगे, इसमें समाज के कार्य। ये बताइए आप जो इतना फिट फाट है, इसका राज क्या है? सबसे बड़ा बात है ना कि आप लोगों को देख करके आप लोग खुश रहते हैं तो हम भी बहुत खुश रहते हैं। बहुत ही सक्सेस प्रोग्राम था हम लोग का हावड़ा साहू समाज का तारकेश्वर कंवरिया सेवा शिविर का। पश्चिम बंगाल अंतर्गत में जितने पश्चिम बंगाल में हम लोग का 42 संस्था से ऊपर है, सबका सब आए थे। बहुत खुशी मन में है। हमारे भी समाज का, हावड़ा साहू समाज का सब कार्यकारिणी सदस्य तन मन धन से सहयोग दिया और सब ने मिलकर हम लोग एकजुट होकर तारकेश्वर कंवरिया सेवा शिविर का
उद्घाटन आज हम लोग का संपन्न हुआ और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा तालमेल और बहुत ही अच्छा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री रूपचंद प्रसाद जी, कारवाक अध्यक्ष श्री भगवान दास आर जी, पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा का सचिव महामंत्री श्री मिश्री लाल साहू जी और अखिल भारतीय साहू समाज का संगठन मंत्री उपाध्यक्ष शिव शंकर प्रसाद गुप्ता जी, सभी का आंचलिक सभी संस्था के अध्यक्ष सचिव सब समाज में उद्घाटन के दिन में दिखाई दिए थे, आए थे और सब ने अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है कि हम लोग भी तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग अभी हावड़ा साहू समाज का हम लोगों का सौंदर्यीकरण का भी प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी बहुत ही खुशी महसूस करते हुए अपना वक्त को समाप्त करते हैं। जय साहू समाज, जय हावड़ा साहू समाज। क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो हावड़ा साहू समाज है, ये सिर्फ जो भगवान का जो कार्यक्रम है, जो सेवा है, वो सिर्फ नहीं है, मानव सेवा भी बहुत बढ़ चढ़ के कर रहा है। एकदम मानव सेवा ही तो परम धर्म है। मानव सेवा हम लोग हमेशा, देखिए हम लोग तारकेश्वर सेवा शिविर, शीतला माँ का चांद में भी कैंप लगाते हैं, आपका छठ पूजा कैंप में भी चांद लगाते हैं, चश्मा वितरण का भी फ्री चश्मा वितरण का भी प्रोग्राम करते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाते हैं। हम लोग हर कार्यक्रम से जुटे। गंगा सागर में हम लोग बाबू घाट में सेवा लेते हैं। हम लोग हर जगह सेवा देते हुए, मानव सेवा परम धर्म है, इसको भापते हुए हम लोग मानव सेवा ही करते हैं। क्योंकि भगवान ने भी जन्म लिया था, श्री राम जी ने जन्म लिया था, श्री कृष्ण भगवान ने भी जन्म लिया, तो मानव सेवा का ही परम धर्म माना। हम लोग भी परम धर्म मानव सेवा को ही मानते हैं। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? अभी गंजोबाड़ी में भव्य जो सम्मेलन है, इसका प्रस्ताव यहाँ पे आया है, क्या बोलना चाहेंगे? एकदम गंजोबाड़ी में राम लखन गुप्ता जी ने जो 3 तल्ले का मकान जो प्रोग्राम धर्मशाला जो अभी उनको बनाने जा रहे हैं, बाद में सौंदर्यीकरण होगा। ये तन मन धन से शंभू जी सचिव हैं, उनके राम लखन जी गुप्ता अध्यक्ष हैं। ये लोग तन मन धन से जो अभी 6 महीने के अंदर में खड़ा कर दिया, समझे, ये बहुत बड़ी सफलता है। एक तरफ से हमारे समाज का कर्णधार है। देखिए, कलकत्ता साहू समाज के तरफ से जब यहाँ कैंप लगता है, पूरे समाज हमारे एक साथ इस संकल्प लेते हैं, मंच पे आके हम लोग कोशिश करते हैं कि उपस्थित हो। और ये जो 5 सोमवार यहाँ जो सेवा के काम होंगे, उसमें हमारे कलकत्ता साहू समाज के तरफ से पूरे टीम के साथ हम लोग आएंगे, सेवा देंगे। ये हम लोगों की सोच है। देखिए, हम लोग विगत 2-3 वर्षों से ही हम आए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन हावड़ा साहू समाज आज 25 वर्षों से जिस तरह से सेवा देते हैं, ये हमारे साहू समाज के लिए गर्व है। हम लोग चाहते हैं इसी तरह हर संस्था आगे बढ़ के इस तरह का धार्मिक प्रोग्राम में अपना काम के द्वारा सेवा देते रहें। मैं अलीगंज साहू समाज का सचिव हूँ और 90% अचीव कर चुके हैं। कलकत्ता साहू समाज से भी बिलोंग करता हूँ और पश्चिम बंगाल साहू समाज से भी बिलोंग करता हूँ। काम करने का एक तरीका अभी हमने तारकेश्वर कमरिया सेवा शिविर हावड़ा के शिविर में मैं आया हूँ। इनका लेकिन जब अवसर आज उद्घाटन है और जो भीड़ का कतार है और सेवा का जो उम्र है, सो आप थोड़ा सा कैमरा यदि घुमाइएगा तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेवा का आदमी कितना प्रभावित है। जो कमरिया का सावन महीना में सेवा करने के लिए आदमी तात्पर्य है। प्रांत और राज्य की होता है, पूरे राज्य के हम लोग का कलकत्ता साहू समाज के भी बोल सकते हैं और प्रांतीय प्रेसिडेंट अशोक भैया जी है, उनके माध्यम से ये शिविर का आयोजन किया गया है। ये जो सावन महीना का चारों सप्ताह में शनिवार और रविवार हम लोग ये किया जाएगा। चलकर
आज हम लोगों का कार्यक्रम को जो है राजेंद्र भैया जी बाबा नायक धाम में करना है। रूपचंद अंकल जो है तो हमें लगता है सफल नहीं उद्घाटन किए हैं होगा। और हम टालीगंज से हम लोग भी सोच रहे हैं एक दिन का भार यहाँ पे लूँ और सेवा का कांवड़िया का सेवा करके पुण्य का प्राप्ति करो। करने की शैली है धर्म बोले जानिस्ता। यहाँ का आने के मतलब आप समझिए ये धाम है, भगवान की नगरी है। भगवान की नगरी में आने में किस तरह लगता है ये आपको अपने खुद मालूम चला होगा। भगवान का मंदिर और भगवान का धाम सेवा का धाम है। सेवा का धाम मतलब तन मन से कांवड़िया का सेवा करना, मन को पवित्र कर करके सभी द्वेष को दूर कर करके सभी वर्ग का आदमी को यहाँ पे सेवा का भाव करना है, एक लगन से सेवा करना है। यही है बोल करके हम अपना बात को विराम देते हैं। मैं कलकत्ता में साहू विकास संघ चीना मंदिर के पास से आया हूँ। वहाँ का अपना प्रेसिडेंट अपना कार्यभार वहाँ पर ही देखता हूँ। राजेंद्र साहू जो हावड़ा निवासी है और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हावड़ा साहू समाज में एक लंबे समय से आ रहे हैं और यहाँ की कार्यशैली बहुत अच्छी है। बहुत ढंग से एक लंबे समय से कार्य करता आ रहा है हावड़ा साहू समाज। और हावड़ा साहू समाज का 2 साल का व्यवधान के अंतर्गत ये सिल्वर जुबली कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। हम सारे लोग इसमें संपूर्ण रूप से अपना सहयोग और योगदान दे करके इस समाज को किसी ढंग से सफल हो, यही कामना अपनी है। यहाँ पे आज दुर्गा प्रसाद जी यहाँ पर आज हावड़ा साहू समाज का कांवड़िया तीर्थ सेवा शिविर जो 25 साल से लग रहा है, हर साल ही आते हैं। आज 15 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। हावड़ा साहू समाज का ये कार्यक्रम आज तो नया नहीं है और ये काम जो हो रहा है माने तीर्थ यात्री जो लोग जाते हैं पैदल चल करके तारकेश्वर में जल चढ़ाते हैं, उनका सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का सोच हावड़ा साहू समाज ने रखा है कि जो भी यहाँ पर तीर्थ यात्री जा रहे हैं उनको जलपान, चाय, खाना इत्यादि मुहैया कराना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए धर्म है तो सब कुछ है। धर्म जो है सबको जोड़ता है। आज धर्म के चलते ही आज ये सेवा शिविर भी हो रहा है। धर्म एक माध्यम है सेवा करने का और ये धर्म के माध्यम से ही हावड़ा साहू समाज आज सेवा शिविर को इस मूर्त रूप में दे रहा है और सेवा कर रहा है बड़ी तरह से। देखिए ये प्रोग्राम बहुत दिन से चला आ रहा है कि गंजोबाड़ी में एक वेस्ट बंगाल तहलीक साहू सभा का प्रोग्राम हो और इसकी घोषणा आज जब हुई है तो ये मैंने सभी साहुओं में एक उत्साह का माहौल पैदा हुआ है कि झारखंड में जाकर के हमारा जो कुल देवता है नायक बाबा वहाँ पर हम लोग का ये प्रोग्राम होगा। देखिए ये हमारे साहू समाज का प्रोग्राम है। ये इतना भव्य और इतना सुंदर होता है कि इसके लिए कुछ कहना ही कम होगा। कुछ शब्दों में इसका विवरण करना बहुत ही कम होगा। शब्द कम पड़ जाएंगे पर इसकी व्याख्या कम नहीं होगी। हर एक समाज सेवा में हर एक काम में चाहे वो कुंवारी कन्याओं का विवाह का आयोजन हो या किसी गरीब का सहयोग का आयोजन हो या तारकेश्वर का कैंप हो या सागर का मेला का कैंप हो या कोई भी काम में ये साहू समाज हमेशा एकत्र होते हैं, इकट्ठा होकर अग्रसर होकर एक साथ मिल के लोगों की सेवा में आगे आते हैं। और यही हमारी एकता का मेन मूल मंत्र है जो हमें जोड़ कर रखता है, मानव सेवा मानव धर्म। यहाँ पे आके बहुत खुशी अनुभव हो रहा है। आज तारकेश्वर सेवा शिविर का 25वां सिल्वर जुबली समारोह मनाया जा रहा है, इसलिए बढ़ चढ़ करके हमारे कार्यकर्ता सभी आए हैं। पश्चिम बंगाल में 42 संस्था है और तरह तरह का प्रोग्राम होता रहता है। अभी हम लोग का प्रेसिडेंट साहब जी घोषणा किए हैं कि हम लोग झारखंड में बाबा नायक धाम में जाके हम लोग प्रोग्राम करेंगे और बहुत उत्सुकता के साथ में 1000-2000 संख्या के दल बल से हम लोग महिला लेकर के नायक बाबा जाएंगे और सभी को लेके पहुंचेंगे। हम लोग का काम इतना बेहतरीन होते जा रहा है कि मैंने हम लोग सोच भी नहीं सक रहे हैं कि कितना तेज़ी से साहू समाज बढ़ रहा है। साहू समाज का प्रगति इतना तेज़ी से हो रहा है कि हर एक समय छात्रवृत्ति बोलिए
या तो कुछ भी बोलिए, नारी है, कम्बल वितरण है, चश्मा वितरण है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, सभी जगह हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। और हमारे समाज में एक अनगिनत लोग हैं जो सेवा करने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं और साहू समाज का सेवा करते रहते हैं। लगभग 5 साल होने जा रहा है और आज 25वां साल है। बहुत अच्छा लग रहा है। सेवा की भावना रहती है। आज में जो हावड़ा साहू समाज के क्या वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और दिनों दिन सेवा और डेवलप हो रहा है और अच्छा लग रहा है। हम लोग हमारे कलकत्ता साहू समाज के प्रेसिडेंट हम लोग भी देते हैं, सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। एक दिन हम लोग अभी जो गंजोबरी में सर्वोपरि हमारी महिला यूनिट आया है, हमें टोटल महिला यूनिट अच्छा है। अपना साहू समाज का मंदिर है, वहाँ पे अपना नायक बाबा का मंदिर है। अच्छा है, जाना चाहिए, हर आदमी को जाना चाहिए। हम लोग भी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। हम लोग आज यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद 25 साल से श्री दुर्गा प्रसाद साहब बहुत ही अब मैं श्री ईमानदारी से, बहुत ही धर्म के काम से आज हम लोग तारकेश्वर नाथ बाबा के चरणों में 25 साल से यहाँ पे सेवा देते आ रहे हैं। और हावड़ा साहू समाज के साथ जितने भी लोग यहाँ आज आए हुए हैं, सब सेवामूलक काम में, धर्म के काम में सबसे आगे रहते हैं। यहाँ जितने भी लोग आप देख रहे हैं, और हम लोग का 1 महीना पूरा निःशुल्क यहाँ पे कैंप लगता है। यहाँ पे चिकित्सा निःशुल्क होती है, खाना पीना, और जो भी किसी कांवरियों किसी भी तरह का कोई भी अगर असुविधा हो तो उनको यहाँ सॉल्व किया जाता है। हम लोग के समाज में पूरे श्रावण में एक बार यहाँ पे भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम होता है। और हम लोग यहाँ ही नहीं, हम लोग हावड़ा साहू समाज के तरफ से पूरे साल में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। जैसे शीतला माँ का चांद हावड़ा में, सालकिया में, जो उत्तर हावड़ा में एकलौता पूजा है, हम लोग बहुत धूमधाम से कैंप लगाते हैं। 2-3 बार आया हूँ। हम लोग छठ पूजा के समय में भी हम लोग हुगली डग में कैंप लगाते हैं। हम लोग अपने हावड़ा साहू समाज के भवन में आई चेकअप भी करवाते हैं। हम लोग दुर्गा पूजा में साड़ी वितरण भी करवाते हैं। और भी छोटे छोटे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितना हम लोग कर सकते हैं धर्म के काम में, उतना करते हैं। शादी ब्याह में कुछ जो अगर देना हो, लड़की का कुछ भी हो, तो हम लोग उसको निपटाते हैं, उसको देते हैं। और हमारे समाज में जितने भी आज यहाँ जो भी जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग अपने आप में एक अलग हस्ती और अलग जगह बना के रखे हैं जो पूरे जार में। और आपने कहा जो कुछ देरी पहले कि आपने गंजूबाड़ी में हमारा तो बाबा नायब धांग जो हमारा अपना मैंने कि इष्ट देवता है, हम लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ तो पहले कुछ भी नहीं था, अब वहाँ तो बहुत बड़ा भवन बन चुका है। और हमारे राजा भाई हावड़ा सवा बाजार साहू समाज से हमारे प्रिय मित्र भी है और हावड़ा साहू समाज के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है। ये हमारे चंद्र बाबू और हावड़ा साहू समाज के सहयोगी टीम संख्या में उपस्थित होना नाली से हमारे सुरेश गुप्ता जी, हमारे बबलू साहू जी, ये हमारे छोटा भाई गणेश साहू जी, ये हमारे नारायण साहू जी, जो बहुत ही तन मन से हम लोग सेवा करते हैं यहाँ भी। जैसे कि तपस्या जिला साहू समाज, कलकत्ता साहू समाज, आपको सोवा बाजार साहू समाज, आपको जाके विकास साहू ट्रस्ट, भवानीपुर साहू समाज, सलभ साहू समाज, जितने भी लोग हैं सब अपना अपना सेवा यहाँ देते हैं। और हम लोग आज 25वां साल रजत जयंती के जैसे शंकर भगवान में मना रहे हैं, सिल्वर जुबली। बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी है कि हम लोग आज 25 साल पूरा किया हम लोगों ने। और हम लोग के बुजुर्ग जितने भी हैं वो बहुत कष्ट से के इस साल को हम लोगों ने बनाया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार शाह हुआ। मैं कलकत्ता साहू समाज का भूतपूर्व कोषाध्यक्ष के पद पर मैं था। फिलहाल मैं साहू समाज का भवन मंत्री के पद पर आसीन हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष हो रही है कि मैं हावड़ा साहू समाज का 25वां गोल्डन या सिल्वर जुबली के अवसर पर मैं यहाँ पर जो कांवड़िया के सेवा शिविर के लिए जो उद्घाटन समारोह हो रहा है, इसमें मैं जो आज आया हूँ, मैं बहुत बड़ा अपने आप को आभारी समझ रहा हूँ, जो कि हमको एक भोले बाबा का सेवा का मौका मिला। और यहाँ पर करने का यही भाई बोल के मेहरबानी करता। मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद है, मैं सलकिया का रहने वाला हूँ। ये प्रोग्राम हम लोग साहू समाज का ये 25 साल से प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम मैंने प्रतिदिन प्रति बरस
हर बरस में डेवलप करते जा रहा है। हावड़ा में हम लोग साहू समाज मतलब भवन भी बनाए हैं, वो भवन भी मतलब पुराना भवन था, भवन को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और ये सभी जितने भी मेंबर बोलिए चाहे सदस्य बोलिए, सबके सहयोग से ये शिविर लगा हुआ है। और हर शनि और रविवार को मतलब ये शिविर में हम लोग फ्री में दवा भोजन का सब व्यवस्था करते हैं। बाली साहू समाज से आए हैं, प्रत्येक वर्ष के तरह इस साल भी अच्छा लग रहा है। हम लोग आ रहे हैं 25 साल से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग यहाँ 5-6 साल से आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। और विशेष बाबा का हम लोग भक्त है, इसीलिए यहाँ पे बाबा का बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे करके करना चाहते हैं। और बाबा का प्रति बहुत ज़्यादा हम लोग का जागरूक जनाने के लिए हम लोग सभी को चाहते हैं, हम लोग अपना साहू समाज को जगाना चाहते हैं। बहुत गर्व वाली बात है, बहुत अच्छी लग रहा है। इसलिए हावड़ा साहू समाज की तरफ में मैं आया पहले निमंत्रण में, मैं हर आते हूँ मगर सेवड़ा पुलिस साहू समाज में, मगर इन साल बहुत इनवाइट बहुत जोरदार से बोले हैं कि आप लोग सॉल्ट लेक साहू समाज आते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सॉल्ट लेक की तरफ से हम लोग सभी लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक साहू जी एक मंच पर आकर हम लोग सेवा का काम करते हैं। ये बहुत गर्व वाली बात है कि हम लोग साहू लोग जो हैं आकर एक साथ होकर हम लोग जो है महिला भी ग्रुप जो है सब आगे बढ़कर, ये बड़ी गर्व वाली बात है। हमारे समाज से सभी लोग आए हैं, सॉल्ट लेक साहू समाज से, बहुत अच्छा लग रहा है। और बेसिक क्या बोलूं, मैं ये समाज में आए हूँ, बहुत गर्व वाली बात है कि बहुत अच्छी लग रही है कि हम लोग का हावड़ा साहू समाज इतने बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, इसके लिए उन लोग को बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। ये अगर बैनर नहीं होता तो हजारों कार्यकर्ता यह इस जगह पर नहीं होते। किसने क्या है कि क्या चले के जुल्म के अफवाह के सामने आ नहीं सकता कोई, 16 हवा के सामने लाख फौजें लेके आए, अमन का दुश्मन कोई टिक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। यह एकता ये भीड़ ये साबित करती है कि हम एक हैं और नेक है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जाति का संरक्षण करना नहीं है, हमारा उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना है, देश के लिए काम करना है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि प्रगति समृद्धि के लिए काम करना है। साहू समाज राष्ट्र को एक करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। धन्यवाद। गंजोबाड़ी में जो सम्मेलन होने का प्रस्ताव है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बाबा नायक धाम गंजोबाड़ी का सेक्रेटरी हूँ। मैं बाबा नायक धाम गंजोबाड़ी का सेक्रेटरी हूँ। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व आया है कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको रहने खाने की सुव्यवस्था हमें करना है। इसके लिए हमें शासन और प्रशासन से हमें आदेश लेना पड़ेगा कि आज बाबा नायक धाम गंजोबाड़ी में ये जो 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसके लिए एक परमिशन चाहिए। और हम आशा और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले सभी प्रतिनिधियों के लिए हम उनके लिए उचित व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, खान पान की व्यवस्था करेंगे। मेरा नाम शंभूनाथ साहू है, बाबा नायक धाम ट्रस्ट का मैं महासचिव हूँ। अच्छा नहीं में लगे हुए हैं, मतलब हर्षित हो रहे हैं। अच्छा तो नहीं बोला, हर्षित हो रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है कि इतना पावन जगह में आए हुए हैं। इतने भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्तों से मुलाकात हुई है, जो भगवान के दर्शन करके आए हुए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ सेवा दे रहे हैं। उनके सीधा भक्तों से मुलाकात हुई। अपने आप को इतना हर्षित फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। उम्र बढ़ता नहीं है, उम्र घटता जा रहा है। साहू समाज है, ये सिर्फ धर्म कर्म नहीं, मेरा उम्र अभी का जो काम है 83 साल का है। अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो हमको 73 बोलना पड़ता है। सबसे पहले मैं हावड़ा साहू समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसकी
25 वर्षगांठ है, जिन्होंने सेवा की भावना और चेतना जगाई। आप समझ सकते हैं एक पीढ़ी पहले 25 साल पहले परिस्थितियां क्या होगी, उस विकट परिस्थिति में भी उसने सेवा कैंप लगाया, सेवा का स्थान दिया, सेवा किया। वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। उसी का देखा देखी बहुत सारे हमारे साहू समाज के कैंप चालू हुए और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं साहू समाज का कि आपने समाज में एक चेतना जगाई है, सेवा का, समाज सेवा का, भक्तों की सेवा का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है हमारे हावड़ा साहू समाज। अभी जो प्रस्ताव आया है गंजोबरी में सम्मेलन करने का, क्या बोलना है? देखिए, प्रस्ताव आया हुआ है, उसमें हम लोग को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर वहाँ सम्मेलन होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो गंजोबाड़ी जो है मिडिल पॉइंट है झारखंड का, बिहार का और बंगाल का, वो 3 स्टेट को कवर करेगा। और हमारे जितने साहू बंधु हैं वहाँ पर आकर के एक हमारे अनंत देव जो है नायक बाबा, उसके दरबार में अगर हमारी सम्मेलन होगी, बाबा नायक का हम लोग पे आशीर्वाद रहेगा, हम लोग दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, समाज की उन्नति करेंगे। और हम लोग से जो तेली बंधुओं से, तेली परिवार से हो पाएगा, समाज के, देश का उन्नति में हम लोग सहयोग करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि हावड़ा साहू समाज तारकेश्वर कांवरिया सेवा शिविर का आज 25वां वर्ष, मतलब रजत जयंती, इंग्लिश में हम लोग सिल्वर जुबली बोलते हैं, आज मना रहा है। बहुत ये आनंद की बात है कि एक संस्था लगातार 25 साल से एक सेवा देना, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत ही एक सराहनीय बात है कि इन्होंने 25 साल से लगातार तारकेश्वर कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं और पूरे महीने तक चलाते हैं। मैंने ऐसा सेवा और पूरा एकदम सुसज्जित सिस्टम से पूरे महीने का सेवा देना बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं हावड़ा साहू समाज को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं तोपसिया तेजिला साहू समाज के सचिव धनंजय गुप्ता, मैं हावड़ा साहू समाज के सभी कार्यकर्ता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ऐसे सेवामूलक कार्य करना चाहिए, धन की शुद्धि के लिए, धर्म को जय के लिए। ऐसे सेवामूलक कार्य दान दे करके और निस्वार्थ सेवा करके समाज को आगे बढ़ाना और इसी प्रकार से धर्म को आगे बढ़ाना, ऐसे सेवामूलक कार्य सब समय होते रहना चाहिए। और ऐसे भी तो सावन महीना में हम लोग कोई भोले बाबा के पास कांवर लेकर के, तो कोई बहंगी उठा करके, तो हम लोग उसी को सेवा दे करके ही पुण्य का भागी हो रहे हैं और सभी को इसमें साथ देने का भी आह्वान करते हैं कि ऐसे रजिस्टर्ड समाज, ऐसे इस समाज में जो भी व्यक्ति अपना दान राशि देते हैं, सेवा देना चाहते हैं, वो पूरे सभी राशि एकदम अच्छा से सभी भक्त के पास जाता है। उनका दिया हुआ दान एकदम 1 पैसे का कोई घोटाला नहीं, किसी प्रकार का कोई विच्छेद नहीं, पूरी सेवा में लगता है। इसलिए मैं दानदाताओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे स्थान पर, ऐसे संस्था के पे विश्वास करके अपना सहयोग राशि करें, सहयोग राशि दें और ऐसे संस्था को हिम्मत बढ़ाएं कि और आगे से भी और अच्छे सेवामूलक कार्य कर सकें। और मैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हावड़ा साहू समाज का 25वां जयंती मनाया जा रहा है। जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं इसी साहू समाज का अकाउंटेंट पद में हूँ। मेरा नाम संतोष साहू है। 25 साल से ये सेवा किया जा रहा है। ये हमारे पापा कालीचरण अंकल जी, बहुत सारे लोग मिल के सेवा दे रहे हैं। अब हम लोग भी सेवा दे रहे हैं। हावड़ा साहू समाज में बहुत सारा संस्था आए हैं, रगड़ा साहू समाज आए हैं, पश्चिम बंगाल आए हैं, तेजला साहू समाज आए हैं, ये हमारे समधी जी, हमारे धनंजय भैया, सभी कोई आए हैं यहाँ पे, सब कोई मना रहे हैं अच्छे ढंग से। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम लखन गुप्ता बाबा नायक धाम ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हूँ और इस प्रयास को मैं 20 साल से कोशिश कर रहा था कि बाबा नायक का प्रचार पूरे माने पश्चिम बंगाल समाज के लोग को के आग्रह से इसको और भव्य किया जाए कार्यक्रम को। तो आज हमें
बहुत खुश हैं कि पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट के आह्वान पर इस कार्यक्रम को संकल्प किए हैं कि हम बिहार, बंगाल और झारखंड के सभी साहू जी का एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिक लोग और समाज के जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको आमंत्रित करके उस नायक धाम को सभी को नज़रों में एक पर्यटक स्थल के रूप में हम इसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा बहुत खुशी की बात है कि पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के प्रेसिडेंट साहब से आज घोषणा किया गया इस मंच से, हावड़ा भारतीय साहू समाज के मंच से 25वां सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में। तो हम बहुत आनंदित हैं कि जो चीज़ हम चाह रहे थे 20 वर्ष से कि हमारे समाज के लोग बाबा का नेतृत्व में हमारा सारा कार्यक्रम सामाजिक एकता, अखंडता और राजनीतिक, सामाजिक ये सब कार्यक्रम बाबा के अगुवाई में हो, तो आज हमें खुशी हुआ कि हमारे पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों आज घोषणा किए पूरे समाज को कि हम दिसंबर में एक विशाल सम्मेलन बिहार, बंगाल और झारखंड को मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। इसमें और पर्यटक स्थल का नाम ऊंचा होगा। यहाँ पे आए कितना खुश है आप? हम तो बहुत खुश हैं कि हम 20 बरस से कि 25 बरस से हम यहाँ हर उद्घाटन में आते रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हावड़ा भारतीय साहू समाज का कार्यक्रम विशाल रूप लेते जा रहा है। हम बहुत खुश हैं, हमारा समाज एकता में अब आगे बढ़ते जा रहा है, हम संगठित होते जा रहे हैं, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुश हैं। ये शंकर भगवान की जय, नायक बाबा की जय। कार्यक्रम तो सफल होना ही था। आप तो साहू समाज के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, हर कार्यक्रम को कवर करते हैं और साहू समाज का हर कार्यक्रम अमूमन सफल ही होता है। और हम लोग सम्मिलित रूप से जितने भी साहू संस्थाएं हैं, लगभग 42 संस्थाएं हैं पश्चिम बंगाल अंचल में, सभी सम्मिलित रूप से किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना उद्योग देती है। मैं हावड़ा साहू समाज को साधुवाद देता हूं, उसके रजत जयंती समारोह में इतना व्यापक रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम किया है। और मुझे याद है पिछला साल का, गत वर्ष का, जब लगभग 2 महीने का सावन था तो कई यहाँ पे स्वयंसेवी संस्थाएं का तंबू उखड़ गया था, सेवा नहीं दे पा रहे थे। तब भी हमारे हावड़ा साहू समाज ने बहुत अच्छे से सेवा को दिया है और सेवा में कहीं भी कमी नहीं की है। मैं पुनः हावड़ा साहू समाज के अध्यक्ष, चेयरमैन और जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? आज लोग बहुत हर्षित थे और आज 25वां साल है कांवरिया सेवा शिविर का, बहुत खुशी की बात है। हम चाह रहे कि मैंने गोल्डन जुबली मनाया इन लोग, आज सिल्वर जुबली तो गोल्डन जुबली मनाया है। क्या बोलना चाहेंगे? सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दान भी बहुत आया। हाँ, बहुत खुशी बात है कि सब मैंने बढ़ चढ़ के दान दिए हैं और सब सेवा भी देंगे। और हम लोग जो है एक दिन के भार लिए हैं सेवा करने का। क्या बोलना चाहेंगे? जो हावड़ा साहू समाज जो मानव के लिए जो काम करते हैं, जो सेवा देते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि हर साल आप लोग ऐसे करते हैं सेवा। आइए हम सब वैद्यनाथ की सेवा में प्रवेश करते हैं। गंजोबारी में जो सम्मेलन होने जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? होवे, हम तो चाह रहे होवे, हम लोग पहुँचेंगे। आप भी तो गंजोबारी गए? पहुँचेंगे जी हाँ। जी कैसा लगा? अच्छा लगा। हम लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, हर साल। क्या बोलना चाहिए? हमारे हावड़ा साहू समाज आज रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। तारकेश्वर सेवा शिविर का 25 साल इस साल पूरा हो रहा है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग शुरू से ही स्टार्टिंग में 1997 में हम लोग पहले मोबाइल सेवा किए थे 1 साल। मोबाइल सेवा करने के बाद में हमने सोचा कि नहीं, मोबाइल सेवा में बहुत परेशानी होती थी, तो हमने फिर एक जगह चूज किया। तो यहाँ पर आए तो हमने
कोल्ड स्टोर के मालिक से बात किए। उसके बाद हम लोग जब प्रोग्राम शुरू किए तो हम लोग इतना उत्साह हुआ कि और सभी संस्था के लोग आके हमें उत्साहित किए, तो हम लोग मन और बढ़ते गया। और ये 25वां वर्ष जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी बहुत बड़ी सराहनीय कार्य है, जो हमारे हर एक साल 25 साल में 25 साल उनका सहयोग रहा है। ये भी एक गर्व की बात है कि हावड़ा साहू समाज को हमने 25 साल दिए हैं सेवा और 25 साल उनका सहयोग रहा है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जो भगवान दास जी हैं, ML साहू जी हैं, मैं उनके अनुसरण करता हूँ। मैंने उनके जो भी निर्देश मिलता है पश्चिम बंगाल से, मैं इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी तारकेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे जितने भी रूपचंद जी खुद यहाँ पे आए थे, हाँ रूपचंद जी खुद आए थे। हमारा खुद का हावड़ा साहू समाज का भवन भी है, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए रूपचंद जी ने 1 लाख 1 रुपया की घोषणा की है और तारकेश्वर के लिए अलग से 21,000 रुपया अनुदान किए हैं। तो ये बहुत बड़ी महानता है उनकी कि हमारे भवन के भी कार्य में सेवा दिए हैं और तारकेश्वर कांवड़िया के सेवा। भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि आज मैंने ये हम समझ रहे हैं कि अच्छे कर्म कीजिएगा तो पैसा की कमी नहीं है, पैसा देने वालों को कमी नहीं है, सिर्फ पैसा लेने वालों को कमी है कि आप अच्छा काम करिए, मानव सेवा कीजिए। देखिए आपको कहीं कहीं से भगवान मिलते रहेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। और हमारे हावड़ा साहू समाज में जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने बहुत ही योगदान दिए हैं। खास करके मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मैंने हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके बिना कोई भी काम नहीं संभव हो सकता है। आज जो हमारे कार्यकर्ता जैसे हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, सुदीन साहब जी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, मैं अध्यक्ष विनोद साहब हूँ, हमारे चेयरमैन साहब कालीचंद साहब जी हैं और हमारे पप्पू साहब जी हैं, हमारे सुशील साहब जी हैं, हमारे सुभाष साहब जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, रंजीत जी हैं, विजय कुमार गुप्ता जी हैं, विजय प्रसाद जी हैं। इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इस हावड़ा साहू समाज को जो समय योगदान दिए हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मानव सेवा ही परम धर्म है। मानव सेवा, यहाँ हम लोग आते हैं मानव सेवा के लिए आते हैं। भोले बाबा के नाम पर जो भोले बाबा जो कांवड़ लेके जन चढ़ाए जाते हैं उनके सुविधा सभी प्रकार का हम लोग हेल्प करते हैं। हमारे समाज में खाना, चाय, भोजन, चाय, शिकंजी, शरबत, मेडिकल टोटली फ्री रहता है। और कोई भी अगर यात्री भूल जाते हैं या किनका पर्स चोरी रहता है उनको भी हम अनुदान देके उनको सहायता प्रदान करते हैं, ताकि उनका जो कांवड़िया सेवा शिविर का जो जाते हैं उनको सफलता प्राप्त हो। तो हमारी तरफ से यही सेवा रहता है कि जितना सेवा मिल सके तारकेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर को, सेवा यात्री को मैं कोशिश करता हूं। और भोले बाबा की कृपा है कि जो हर एक साल कोई न कोई बहाना हो के हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। इसके लिए मैं अपने साहू समाज के पूरे सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम जो हुआ है हावड़ा साहू समाज का ये 25वां साल रजत जयंती के रूप में मनाया गया। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हावड़ा साहू समाज के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने तन मन धन लगाकर इस सेवा को सफल बनाया। और आज हम लोग गर्व महसूस हो रहा है कि हावड़ा साहू समाज कहां से कहां पहुंचा। इसमें हमारे बहुत से साथी, आज जो हुआ है 25वां, इसमें बहुत से साथी हमारे नहीं रहे। मैं उन सबों को दिल से धन्यवाद देता हूं और उनकी आत्मा की शांति प्रदान करता हूं। आज हावड़ा साहू समाज एक ऐसा विशाल रूप ले लिया है जो कि अब पीछे नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा। बस मैं इतना कहकर और विशेष कुछ नहीं कह सकता हूँ। समाज 15 अगस्त 1997 को स्थापित हुआ था और तब से उसके बाद वाला वर्ष से हम लोग 1998 से अपना सेवा शिविर का काम करते आ रहे हैं। और
25वां साल तारकेश्वर सेवा शिविर का यह प्रोग्राम चल हुआ है आज, और हमारा समाज तो 27वां साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन हमारा 25वां साल कोरोना के लिए 2 साल हमारा यह सेवा शिविर बंद था। और आज हमारे जो प्रथम अध्यक्ष थे श्री कालीचरण साहब, जो आज चेयरमैन हैं, इनके संरक्षक में और हमारे साहू समाज के जितने भी कार्यकर्ता थे शुरू से अंत तक, सभी का योगदान इस समाज के विकास में रहा है। और यह समाज का यह सबका योगदान रहा है, तन मन धन से सबसे योगदान करते आ रहे हैं, जिसका यह आज रूप, विशाल रूप आज हरिपाल के बासदेवपुर कोल्ड स्टोरेज में देखने को तारकेश्वर सेवा शिविर तारकेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर के रूप में देखने को मिल रहा है, जिसका आज उद्घाटन हमारे पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के अध्यक्ष श्री रूपचंद प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा हुआ, जो आज बहुत ही सराहनीय है। और हमारे आज वर्तमान अध्यक्ष श्री विनोद कुमार साहब, हमारे वर्तमान सचिव श्री अशोक कुमार साहब, और चेयरमैन तो हमारे श्री कालीचरण साहब जी हैं, और भी हमारे जितने भी सचिव हैं, उप सचिव हैं हमारे वीरेंद्र प्रसाद साहब, कोषाध्यक्ष हैं हमारे श्री सुदीन साहब, और रंजीत साहब भी हमारे उप सचिव हैं, और उपाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, कृष्णा प्रसाद गुप्ता हैं, असिस्टेंट कृष्णा प्रसाद गुप्ता, वर्किंग प्रेसिडेंट तुलसी साहब हैं, क्या है उपाध्यक्ष है, और मैं खुद भी विजय प्रसाद साहु उपाध्यक्ष के रूप में हावड़ा साहू समाज में कार्यरत हूँ। और हमारा समाज हावड़ा अंचल के अंदर में 18/4 शशि भूषण सरकार लेन, नंदी बगान, सलकिया, हावड़ा 711106 में स्थित है, जो शुरू से विभिन्न सामाजिक कार्यों को करते हुए आज यहाँ तारकेश्वर सेवा शिविर का भी, कांवड़िया सेवा शिविर का भी आयोजन, तारकेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर का भी आयोजन करते आ रहा है। हमारा सलकिया बांधा घाट में भी हमारा माँ शीतला का स्नान यात्रा में भी कैंप लगाया जाता है, तथा हमारा हुगली घाट में भी हमारा छठ पूजा का व्रत का भी कैंप लगाया जाता है। और हम दिनों दिन हम समाज के सेवा के रूप में हावड़ा साहू समाज के साथ काम करते हुए समाज के लोगों को आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं, और हम सभी के सुख दुख में हावड़ा साहू समाज आगे अग्रसर होना चाहता है। मैं चाहूँगा कि हम लोग के रहते हुए समाज और आगे बढ़ता जाए, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस समाज का बागडोर लेता रहे, और जो समाज आगे बढ़ता रहे, यही हमारी, और हरिपाल के लोगों का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है, जो शुरू से अंत तक आज तक यहाँ के लोग भी अपना सहयोग इस कैंप को लगाने में तन मन धन से भी अपना सहयोग देते आए हैं। हरिपाल के लोग, बासदेवपुर के लोग, सभी लोग यहाँ पर अपना तन मन धन से सेवा कार्य में अपना योगदान देते रहे हैं। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुभ साहू समाज को, सभी साहू समाज को धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हावड़ा साहू समाज आज 25वां साल मनाया है। हावड़ा साहू समाज तारकेश्वर सेवा शिविर में शनिवार, रविवार, सोमवार तक सेवा करता है, और हम लोग हावड़ा साहू समाज का जितना भी मेंबर हैं, सब मिलकर मन तन धन से सेवा करते हैं। और हावड़ा साहू समाज आज लगातार 25 साल से सेवा करता आ रहा है, और हमारे यहाँ बासदेवपुर कोल्ड स्टोर के सामने हम लोग कैंप लगाते हैं और तन मन धन से सेवा करते हैं। मैं इतना कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ये तो हमारा घर का प्रोग्राम है, हमको तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन और लोगों को अच्छा लगे तब तो। हम तो अपना चीज़ को कभी ख़राब बोल सकते हैं। ये तो मेरा घर का प्रोग्राम है, हम इस संस्था का चेयरमैन हैं, तो हम तो अच्छा बोलेंगे ही, लेकिन और लोगों को अच्छा लगे तब और हमको भी अच्छा लगेगा सुनने में। अभी यहाँ से प्रस्ताव आया है कि गंजोबरी में सम्मेलन होगा, बड़ा सम्मेलन। हाँ,
हम उसका स्वागत करते हैं। हम लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे उसमें। अभी लोग इतने प्रशंसा किए आप लोगों का, आपका सेवा भाव और आपका अब जो यहाँ पे सेवा किए हुए हैं 25 साल से, तो क्या बोलना चाहेंगे, सुन के कैसा लगा? हम लोग तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं और इस सेवा के भावना से हम लोग का बहुत ज़्यादा विकास भी हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में और हम लोग भरपूर सेवा करें। सबसे पहले हावड़ा साहू समाज के कांवड़िया सेवा शिविर के 25वीं वर्षगांठ के लिए हमारे पश्चिम बंगाल महिला विंग्स की पूरी टीम की तरफ से उनको ढेर सारी बधाइयाँ, तथा वो जो यहाँ पे 25 साल से जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं उनके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए, उनके कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। क्योंकि हमारे प्रत्येक माह में कोई ना कोई कार्य रहता ही है, कोई ना कोई उत्सव रहता ही है, लेकिन उसमें सावन का जो महीना होता है वो विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। क्योंकि इस महीने में कांवड़ शिविर श्रद्धालु लोग नंगे पांव भारत के अलग अलग कोनों से वो लोग आते हैं और भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और उन श्रद्धालुओं के सेवा के लिए यह शिविर लगाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, खाने पीने, चाय, चिकित्सा, सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध है। इसके लिए हावड़ा साहू समाज को बहुत बहुत बधाई, तथा वो इसी तरीके से अपना ये कार्यक्रम करते रहे। और जैसे आज उनकी 25वीं वर्षगांठ पूरी हुई है, ऐसे ही हम बहुत जल्दी उनकी 50वीं और 100वीं वर्षगांठ भी देखेंगे। इसी के साथ ही हमारी महिला टीम के तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं तथा उन्हें गुड विशेस। धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे? अभी गंजोबाड़ी में इतना अब यहाँ गंजोबाड़ी होने जा रहा है, कितना खुश है आप लोग? हम अभी बहुत खुश हैं। यहाँ का भी सम्मेलन देखकर 25वां हो रहा है। हर साल इसी तरह बहुत धूमधाम से होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, महिलाएं जेंट्स सब भी बहुत आते हैं। हमको अच्छा लगा। और गंजोबाड़ी में भव्य सम्मेलन होगा, अभी प्रस्ताव आया है, क्या कितना कुछ है? गंजोबाड़ी में भव्य सम्मेलन होगा तब तो बहुत हर्ष की बात है। ऐसा सब मिलकर करें, अभी तो सब नहीं मिले थे, अभी सब लोग बहुत खुश होकर हाँ हाँ बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। गंजोबाड़ी में बहुत ही जल्द दिसंबर के महीने में एक भव्य समारोह का प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के सभी लोग सभी लोगों का स्वागत रहेगा। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल होगा और इसकी गूंज जो है पूरे भारतवर्ष में सुनाई देगी आपको। हावड़ा साहू समाजेर একজন সভ্য এবং এই সমাজে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। কারণ এই সমাজে সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরের কিছু নাই। এই নীতির ওপরেই এরা চলে এবং এই নীতিতে এরা মানুষের সেবা করে। আমাকে একদিন ডেকে এনে এই ক্যাম্পে এনেছিল, সেই থেকে আমি আজ 15 বছর ধরে এদের সাথে আছি এবং এদের ব্যবহার এবং কাজকর্ম, এদের যে মানব সেবা, যেমন চক্ষু অপারেশান, তারকেশ্বরের মেলা, গঙ্গাসাগরের মেলা, এসব জায়গায় আমি গেছি এবং এদের পরিপাটি এত সুন্দর, এত ভালো যে আমার মন উচ্ছল এই উৎসবে এত ভালো হয়েছে যে আমার শরীর খুব খারাপ, তবু আমি এদের এই 25 বছর হলো আমি সেই জন্যে আরও উঠে চলে এসেছি। কাজে আমি আশা করি যে এরা যাতে আরও উন্নতি করে, আরও করে। আমার নাম শম্ভুনাথ সরকার, আমি ওই উড়িয়াপাড়াতে থাকি। আমার বাড়ির পাশেই হচ্ছে এদের সমাজ। প্রতি রবিবারেও আমি অ্যাটেন্ড করি। আর বছরে যেখানে যেখানে এইসব, যেমন এই তারকেশ্বর, তারপরে গঙ্গাসাগরের ওইখানে, প্লাস ওই গঙ্গাঘাটে, বাবুঘাটে আমি যাই।